साई राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का जो पावन पावन दिन है, यानी दिन है हमारा रविवार का, और तारीख है बहुत ही प्यारी सी तारीख है 17 मार्च 2024। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैमरा सेट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको ये जो रीडिंग्स है ना आज की, वो अच्छे से दिख जाए। तो रीडिंग्स तो इसके पहले जो मैंने बताई थी, तो अभी हम लोग लेकर आए हैं जो यहाँ का विजडम है। आज का जो तारीख का विजडम है, वो बाबा ने क्या बोला है। तो बाबा का ये जो ब्लेस्ड विजडम है, और आप देख रहे हैं आज तो तीनों बाबाओं का आशीर्वाद हमारे पास है। हमारे पास साईं बाबा है, हमारे पास खाटू श्याम बाबा है, हमारे पास हमारे प्यारे गुरु जी हैं। तो आज का जो विजडम है वो क्या है, तो मैं आपको एक बार दिखा दूँ यहाँ पर। देखिए दोस्तों, मैं आपको पढ़वाती हूँ यहाँ पर। मैनिफेस्टेशंस, और यहाँ पे बाबा हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा क्लोज लेकर आऊँ तो यहाँ पर एक इंसान है। एक तो खड़ा हुआ है, एक तो बैठा हुआ है, और ये इंसान इसको खींच रहा है। तो ये हो गया मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बाबा जो हैं हमें क्या मैनिफेस्टेशंस के मैसेजेस यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो रीडिंग आई है बाबा की, विजडम की रीडिंग आई है, तो इसमें मैनिफेस्टेशंस बाबा बता रहे हैं। तो अब हम ज़रा आते हैं इस कहानी पर। ये जो कहानी है क्या है, जो मैनिफेस्टेशंस वाली है। तो अब मैं, जैसे हम हमेशा एक कथा के रूप में ही बताते हैं, तो अब हम इस कथा को आरंभ करेंगे। तो आज की जो कथा जो हम अभी सुना रहे थे, वो थी मैनिफेस्टेशन के ऊपर। तब हम देखते हैं कि इस मैनिफेस्टेशन में साईं बाबा हमसे क्या कह रहे हैं। मैं आपको ज़रा पढ़कर सुनाती हूँ। हेल्प इज़ एट हैंड, बाबा अपीयर्स इन मैनी फॉर्म्स टू हेल्प हिज डिवोटीज़। अब दोस्तों, बाबा कह रहे हैं कि जो मदद है वो पास में ही है, और बाबा जो हैं वो हमेशा बहुत सारे तरीक़ों से आते हैं अपने भक्तों की मदद करने के लिए। तो एक छोटी सी कहानी है यहाँ पर। गणपत कदम was a great devotee of Baba. One day he was traveling from Nasik to Shirdi to visit Baba. The train came to a halt at a station. Ganpat watched as some people got off and others got on. Apart from himself, there was nobody in his compartment. As the guard as the guard blew the whistle indicating the departure of the train, a group of men entered his compartment. The men numbered about a dozen. They looked around the compartment and sat down in the vacant seats. As Ganpat looked at them, cold fear numbed him. He started to perspire. He recognized them. They belonged to the Bhil tribe and were dacoits. They were tall and wore black turbans. They had long moustaches that curled at the ends, and the dark beards gave them a fierce air. By this time, the train had chugged out of the station. Ganpat looked around helplessly at the men around him. They looked back at him, their intention clear in their eyes. He was surrounded by them. It would be a few matter of minutes now before he was robbed, maybe assaulted. The dacoits would take his money and his belongings and jump off the train before the next station. Maybe they had knives. Though Ganpat in fear, maybe they would take his life too. And then, suddenly, Baba's words came to his mind. I always come for my devotee's rescue, wherever he may be. Ganpat closed his eyes and started praying to Baba. All of a sudden, he heard scrambling and scurrying noises all around him. He opened his eyes and looked around in absolute astonishment. The Bheels were all taking to their heels, one by one jumping off the moving train. Their fearsome faces had a look of total terror. It seemed as if they had seen a ghost. Ganpat watched the scene totally astounded. While the last of the Bheels had jumped off the train, he heaved a sigh of relief. Then, as Ganpat sat down in his seat, he had a strangest experience. Right in the seat opposite him, he saw seated an old fakir complete with kafani and headscarf. Ganpat looked at him in amazement. Nobody had been occupying that seat until a few seconds ago, and the train had even halted. And then, before he could even react, the fakir vanished. There was nobody there. When he reached Shirdi, he went straight to Dwarka Mai to see Baba.
As he approached him, Baba smiled cheerfully and said, "So Ganpat, you have arrived without mishap and with all your belongings too. Were you well entertained?" He continued, "I rather enjoyed being a policeman." तो दोस्तों, कितनी सुंदर ये कहानी है साईं बाबा की। अब मैं आपको थोड़ा सा एक संक्षेप में बता दूं तो गणपत कदम जो थे बहुत ही अच्छे भक्त थे, बहुत ही मतलब बोलते हैं डिवोटी थे साईं बाबा के, सच्चे। और एक बार वो नासिक से शिरडी ट्रेन में आ रहे थे तो रास्ते में कुछ लुटेरों ने उनकी ट्रेन को लूट लिया, और वो लुटेरे लगभग 12 लगभग थे। और जब गणपत ने उनको देखा तो उसने मतलब वो पहचान गए कि जिस ट्रेन के डिब्बे में वो बैठे थे वहाँ पर वो लुटेरे थे। बड़े बड़े उनके हाइट थी और उन्होंने काले रंग की पगड़ी पहन रखी थी, बड़ी बड़ी उनकी मूछें थी। और अब गणपत जो थे वो तो अकेले थे और उनको समझ में आ गया था कि अब जो भी उनके पास जो भी माल है या जो भी उनकी बिलोंगिंग्स हैं वो ज़रूर लूट ली जाएंगी। तो अगले स्टेशन के पहले ही हो सकता है कि जो ये लुटेरे हैं ये उनको कुछ हानि भी पहुंचाएं, हो सकता है उनके पास चाकू छुरी भी हो। तो गणपत को बड़ा डर लग गया कि पता नहीं आज मैं जिंदा भी बचूंगा कि नहीं। तो एकदम से गणपत के कानों में बाबा के जो वर्ड्स थे वो आए और बाबा को उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने बाबा से उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तो उसके बाद उन्हें एकदम से बहुत सारे आसपास उन्हें चीख पुकार सुनाई देने लग गई। और उसमें क्या हुआ कि उन्होंने एकदम से अपनी आंखें खोली और उनके विस्मयकारी हो गए वो, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो जो सारे जो चोर लुटेरे थे वो ऐसा लग रहा था कि ऐसा उन्हें लगा कि जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तो गणपत जो है वो एकदम से उनको मतलब वो सारे जो चोर लुटेरे थे वो सारे चले गए, भाग गए। और गणपत को एकदम से राहत की सांस उन्होंने ली और उन्होंने देखा कि सामने एक फ़कीर बैठे हुए हैं जिनके सिर पर जिन्होंने कफनी पहनी हुई है सिर पर, उनके जो बाबा हमारे साफा पहनते हैं उस तरह का पहना था। और गणपत को बड़ी खुशी हुई कि ट्रेन रुकी भी नहीं और इससे पहले कोई सोच समझ पाते फ़कीर एकदम से गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। तो फिर जब वो गणपत जो थे कदम वो शिरडी पहुंचे तो सीधे वो द्वारका माई गए बाबा से मिलने के लिए। और बाबा ने उनसे पूछा कि तुम तो सही सलामत आ गए हो, तुम्हारी कोई जान माल को भी नुकसान नहीं हुआ। और फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें मज़ा आया? मुझे तो बड़ा मज़ा आया पुलिस वाला बनकर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि बाबा जो हैं वो किस तरीके से अपने जो भक्त हैं ना उनको मदद करते हैं। तो कभी भी कोई भी मुसीबत हो या कोई भी परेशानी हो तो अगर हम एक बार ईश्वर का नाम लेंगे, अगर हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा न जाने किस रूप में आ जाएं अपने भक्त की मदद करने के लिए। तो इसी के साथ आज का हमारा जो विजडम है 17 मार्च 2024 को, इसका मैं समापन करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और दोस्तों इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब हम ब्लेसिंग्स को बांटते हैं तो हमारे पास वो ब्लेसिंग्स हज़ारों गुना वापस आती हैं। तो हमें यही सोचना चाहिए, अपने तक ही ना रखें बल्कि अपनों तक भी पहुँचाएँ, दोस्तों तक पहुँचाएँ, रिश्तेदारों तक पहुँचाएँ। और इस चैनल को ज़रूर स्प्रेड करें, क्योंकि ये जो चैनल है डिवाइन इंटरवेंशन फॉरएवर, ये ईश्वर की जो डिवाइन वर्ड्स हैं इनके लिए ही बना है, ईश्वर की डिवाइन टीचिंग्स के लिए बना है। तो आप जितना ईश्वर के जो वर्ड्स हैं, जो टीचिंग्स हैं, उनको आप शेयर करेंगे तो एक तो आप खुद में भी आप प्योरीफाई होंगे, क्योंकि अंदर बहुत सारी खलबली मची रहती है, बहुत सारे डर रहते हैं, बहुत सारी चिंताएं रहती हैं, बहुत क्रोध रहता है, वासनाएं रहती है। तो इन सब का भी ईश्वर धीरे धीरे करके दमन करेंगे। जैसे गंदगी होती है ना मन में, तो ईश्वर एक बार वो सारी गंदगी हटा देंगे ना, तो हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, पावरफुल इंडिविजुअल और एकदम शांति व शांत इंसान बनाएंगे और मजबूत इंसान बनाएंगे और एक अच्छे भक्त बनाएंगे। हमारी सोच अच्छी होगी, हमारे कर्म अच्छे होंगे और इसी तरह से हमारा जीवन हमेशा सुंदर बना रहेगा। तो इसी प्रार्थना के साथ कि साईं बाबा हमें रोज़ अपने विजडम मैसेजेस ज़रूर पहुंचाएं, मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल आएंगे फिर से बहुत ही सुंदर साईं बाबा की विजडम लेकर। और एक बार मैं आपको हमारे जो तीनों बाबा हैं मैं आपको दर्शन करा दूँ, ताकि फिर हम इस चैनल पे दोबारा आएंगे कल। तो हमारे गुरु जी हैं, हमारे खाटू श्याम जी हैं और हमारे प्यारे साईं राम। ओम साईं राम। थैंक यू सो मच दोस्तों।